Hello, my dear students. Welcome to my channel. In this lecture, I will discuss about the steady flow energy equation of nozzle and diffuser. Nozzle and diffusers are steady flow devices which are mainly used in jet engines. They are used mainly in jet engines, spacecrafts, rockets, and even in garden hose. So these nozzle and diffusers are steady flow devices. So we will derive steady flow energy equation of nozzle and diffuser. Before starting, I must say one thing to all of you. Please do subscribe to this channel and of course like it and share it to your friends. So what is nozzle actually? Suppose this is your shape of nozzle. Suppose this is the control surface. This is an open system or control volume. And suppose this is section 1 1 and this is section 2 2. Suppose this is the inlet section and this is exit section. When fluid flows through it, what happens? Its kinetic energy increases, its velocity increases in case of a subsonic flow. Subsonic flow and supersonic flow you will study in compressible fluids. Whenever the velocity of a fluid is less than the velocity of sound, you see velocity of fluid is less than velocity of sound, the Mach number is less than 1, and then the flow is called subsonic flow. And when it is greater than the velocity of sound, the flow becomes supersonic and Mach number becomes greater than 1. In case of subsonic flow, what happens? The cross-sectional area of the nozzle decreases in the direction of fluid flow. And in case of diffuser, the opposite things just happens. The cross-sectional area of the fluid increases. Here at the inlet section, this is 1 1 and this is 2 2, and area increases in case of a diffuser and for subsonic flow. And for supersonic flow, what happens? The reverse thing happens. The nozzle area of nozzle actually increases, whereas the area of diffuser actually decreases. So they operate in an opposite manner. The way nozzle operates, diffuser operates in completely opposite manner. In case of a nozzle, what happens? Nozzle increases the velocity or kinetic energy of a fluid at the expense of its pressure. So whenever a fluid passes through a nozzle, जब एक फ्लूइड पास करता है नजल के अंदर, उसका वेलोसिटी बढ़ जाता है. वेलोसिटी इंक्रीजेस अप्रिसिएबली, बहुत सारा बढ़ जाता है. लेकिन उसका जो प्रेशर होता है फ्लूइड का या टेम्परेचर, वो डिक्रीज करता है. उसका एंथैल्पी ड्रॉप होता है और उसी जो ड्रॉप इन एंथैल्पी इज कन्वर्टेड इनटू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को कन्वर्ट होता है ऑलवेज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ. एंड इन दिस केस नोजल व्हाट डज, ये फ्लूइड का वेलोसिटी को बढ़ा देता है और at the same time enthalpy of the fluid decreases as well as the pressure and temperature of the fluid also decreases. And in case of subsonic flow, the shape of the nozzle is like this, and
In case of supersonic flow, the shape of the nozzle will be like this, and in case of subsonic flow, the shape of the nozzle will be like this, and shape of the diffuser will be like this. And diffuser does the exactly opposite thing. Diffuser, what does it for subsonic flow? What does it do? It decreases the velocity of the fluid, or you can say it increases the pressure of fluid. इसमें प्रेशर बढ़ जाता है, फ्लूइड का प्रेशर. इट इंक्रीजेस द प्रेशर ऑफ फ्लूइड बाय स्लोइंग इट डाउन. ये क्या करता है डिफ्यूजर? जो फ्लूइड उसके अंदर फ्लो होता है उसका वेलोसिटी को वो डिक्रीज कर लेता है, एंड एट द सेम टाइम द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इंक्रीजेस. सो हाउ टू find out or how to derive the steady flow energy equation for nozzle? You see, most of the cases, in case of nozzle, fluid flows through a very high velocity. First we will write down the general steady flow energy equation, and then we will apply the conditions for the steady flow device, that is nozzle. The steady flow equation can be expressed in two forms. One is rate form and another is specific mass form, per unit mass. So अगर हम पर यूनिट मास में अगर लिखेंगे तो ये इस तरह की इक्वेशन होगा. Q is equal to WCB plus delta small h plus delta kinetic energy plus delta potential energy. This is the equation. Q is whatever heat transfer that takes place per unit mass, and this is if any shaft work or any electrical work is done per unit mass of control volume, then I will write that here. And delta H means specific enthalpy में कितना चेंज हुआ है, और डेल्टा काइनेटिक एनर्जी मीन स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ है, एंड डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी मीन्स स्पेसिफिक पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ है. ये होल इक्वेशन पर मास के हिसाब से लिखा हुआ है. सो यू सी इन द केस ऑफ नोजल काइनेटिक एनर्जी का चेंज होता है, क्योंकि ये हर वक्त वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज क्वाइट हाई इन केस ऑफ नोजल. सो फ्लूइड, ये जो फ्लूइड इसके अंदर इतना वेलोसिटी से मूव करता है कि it does not find any time for heat interaction to take place. It doesn't have any time to interact with the surrounding in the form of heat. So इसका मतलब कोई भी हीट इंटरेक्शन सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं हो सकता है, क्योंकि फ्लूइड passes very quickly from one end to other because the velocity of the fluid is very high and hardly कुछ टाइम हमको मिलेगा कुछ हीट ट्रांसफर होने के लिए सिस्टम और सराउंडिंग के बीच. दैट्स व्हाई वी कैन से, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस nozzle is well insulated and it is also horizontal. You see, ऐसे अगर ये एंड और दूसरा एंड एक 1 1 और 2 2, ये अगर कोई डाटम लाइन से अगर हम मेजर करेंगे दोनों का हाइट सेम होगा. ये अगर सपोज डाटम लाइन है, सो 1 1 एंड का हाइट ये डाटम लाइन से जितना होगा 2 2 का भी उतना ही हाइट होगा. सो नोजल्स आर यूजुअली हॉरिजॉन्टल. सो ये दोनों से क्या होगा, यू सी व्हेन नोजल इज इंसुलेटेड इन दिस स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हम Q को 0 लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ हीट इंटरेक्शन अगर नहीं हो रहा है तो पर यूनिट मास में भी ये नहीं हो रहा है, तो स्मॉल q विल बी 0 एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास विल बी ऑल्सो 0 बिकॉज द नोजल इज हॉरिजॉन्टल. ये दोनों टर्म रिड्यूस हो गया 0 को. सो अभी जो ये 3 टर्म्स रहा, यू सी देर इज नो शाफ्ट वर्क इन्वॉल्व इन केस ऑफ नोजल. नोजल में कुछ पॉजिटिव वर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है
और कुछ वर्क भी कंज्यूम नहीं हो रहा है, सॉफ्ट वर्क, उसका मतलब ये टर्म भी जीरो हुआ। तो ये दोनों टर्म रह गया, डेल्टा एच और डेल्टा के ई। सो डेल्टा एच प्लस डेल्टा के ई इक्वल टू जीरो, क्योंकि वेलोसिटी फ्लूइड का इतना ज़्यादा होता है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम इस वन एंड पे सब प्रॉपर्टीज़ को सबस्क्रिप्ट वन लेके लिखेंगे, सपोज एंथैल्पी एट दिस स्टेट वन इज सपोज H1 और वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट दिस एंड इज सपोज V1, देन यहाँ अगर H2 और V2 लिखेंगे तो इक्वेशन विल बी डेल्टा H विल बी, दिस इज स्मॉल h स्पेसिफिक एंथैल्पी, H2 माइनस H1 एंड delta kinetic energy per unit mass will be half V2 square minus V1 square equal to 0. Or we can write H2 plus half V2 square minus H1 minus half V1 square equal to 0. From this we can write H1 plus half V1 square equal to H2 plus half V2 square. And in most of the cases क्या होता है, V1 is negligible because नोजल बहुत बढ़ा देता है वेलोसिटी, so V1 is negligible compared to V2, then this equation can be reduced to H1 equal to H2 plus half V2 square. यहाँ से हम निकाल सकते हैं H1 माइनस H2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं V2 स्क्वायर हो गया 2H1 माइनस H2। लेकिन हमेशा क्या होता है, H1 और H2 किलो जूल पर केजी में होता है, लेकिन हम वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड से होता है। अगर कोई मास हाफ mv स्क्वायर जो होता है, मास अगर 1 kg होगा तो v का यूनिट अगर मीटर पर सेकंड होगा तो ये टर्म का यूनिट जूल होता है, किलो जूल नहीं होता है। तो हम ये जो स्पेसिफिक एंथैल्पी को हम जूल में कन्वर्ट करेंगे ताकि यूनिफॉर्मिटी आएगा। सो V2 स्क्वायर विल बी, किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो ये हो गया 2000 H1 माइनस H2 where H1 and H2 are in किलोजूल पर केजी। अगर H1 H2 जूल पे है तो 1000 नहीं मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा। सो देन V2 और वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट द एग्जिट एंड ऑफ द नोजल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2000 multiplied by H1 minus H2 and unit of the velocity will be meter per second. इस तरह हम velocity at the exit end हम निकाल सकते हैं by applying this. So if steady flow energy equation of a nozzle is concerned, this can be the steady flow energy equation, and this can also be applied for diffuser also. In case of diffuser, V2 can be taken to be negligible as compared to V1 because इसमें क्या होता है, तो वेलोसिटी कम हो जाता है और एंथैल्पी बढ़ जाता है। सो यहाँ क्या हो रहा है, H1 से H2 ड्रॉप होगा, कुछ रिडक्शन आएगा और वो चीज़ कन्वर्ट होगा जाके इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, V2 ज़्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू V1, बट H2 विल बी लेस देन H1. So this is how the steady flow energy equation of nozzle and diffuser are derived. So if we solve a numerical, then the question is like this. You see, a nozzle is a device for increasing the velocity of a steadily flowing stream. At the inlet to a certain nozzle, the enthalpy of the fluid passing is 3000 kilojoule per kg and the velocity is 60 मीटर पर सेकेंड। इनलेट एंड पे ये कंडीशन है फ्लूइड का, जो फ्लूइड जो पास कर रहा है उसका इनलेट कंडीशन दिया हुआ है, एंड एट द डिस्चार्ज एंड द एंथैल्पी इज ऑल्सो गिवन
and the nozzle is horizontal and there is negligible heat loss। ये assumptions जो हम लोग लिए डिराइव करने के टाइम में वो भी गिवन है क्वेश्चन में। नोजल इज हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है एंड हीट लॉस जो होता है जनरल स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में उसको भी वो नेग्लिजिबल बताया है। एंड व्हाट आर द वेरियस थिंग्स दैट वी वांट टू कैलकुलेट इज फाइंड द वेलोसिटी एट एग्जिट फ्रॉम द नोजल। हमें पहले जो एग्जिट एंड पे कितना वेलोसिटी होगा वो निकालना पड़ेगा। इनलेट पे वेलोसिटी दिया हुआ है 60 मीटर पर सेकंड। ऑब्वियसली एग्जिट एंड पे वेलोसिटी बहुत ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू 60 मीटर पर सेकंड। हमेशा हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, अगर कुछ दिया हुआ है तो हमको लेना पड़ेगा। एंड देन इफ द इनलेट एरिया इज 0.1 मीटर स्क्वायर एंड द स्पेसिफिक वॉल्यूम एट इनलेट इज 0.187 मीटर क्यूब पर केजी, फाइंड द मास फ्लो रेट भी निकालना है। You know that in case of a steady flow device, whatever mass flow rate enters into a device, that mass flow rate is equal to the mass flow rate of fluid leaving the steady flow device or leaving the control volume। ये तो हमको पता है। Then if the specific volume at the nozzle exit is this much, you know in case of gases specific volume vary करता है, लेकिन liquid अगर कोई flow करे उसमें स्पेसिफिक वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों वेरी नहीं करता है क्योंकि वो इनकम्प्रेसिबल होता है। यू नो स्पेसिफिक वॉल्यूम, द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम इज डेंसिटी। स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम पर मास और डेंसिटी होता है मास पर वॉल्यूम। सो ये सारे चीज़ें हमें निकालना पड़ेगा। फर्स्ट वी मस्ट ड्रॉ द डायग्राम। सो दिस इज ए नोजल, so definitely the area will decrease from one end to other। Suppose this is 1 1 and this is 2 2। यहाँ क्या हो रहा है एट द इनलेट, और हम ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। ये नजल है 1 1, ये 2 2, ये कंट्रोल सरफेस है, ये कंट्रोल सरफेस है जैसे कि बाउंड्री, और ये वाला चीज़ें कंट्रोल वॉल्यूम होता है इनसाइड का चीज़। सो यहाँ यू सी एट इनलेट कंडीशंस व्हाट आर द वैल्यू गिवन हियर एट इनलेट कंडीशंस और सेक्शन 1 ये 1 है। H1 दिया गया है 3000 किलो जूल पर केजी, स्पेसिफिक एंथैल्पी दिया हुआ है, और वेलोसिटी इज 60 मीटर पर सेकेंड। सो मतलब V1 हम ले लेंगे 60 मीटर पर सेकेंड। एंड एट द डिस्चार्ज एंड मतलब एंड 2 सेक्शन पे वेलोसिटी दिया है 2762 किलो जूल पर केजी। वी नो दैट एंथैल्पी का ड्रॉप होता है व्हेन ए फ्लूइड पासेस थ्रू नोजल। सो 3000 से 2762 हो गया, एंथैल्पी ड्रॉप हो गया। सो वेलोसिटी ऑब्वियसली बढ़ेगा। सो V2 हमको निकालना है बाय अप्लाइंग। सो बीट ए में हम वेलोसिटी निकालेंगे। सो जस्ट वी डिराइव्ड स्टेडी फ्लो इक्वेशन ऑफ ए नोजल इज H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2। तो यू सी हम ये अगर निकालेंगे H1 माइनस H2 इक्वल टू V2 स्क्वायर बाई 2 माइनस V1 स्क्वायर बाई 2, हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन H1 और H2 ये दोनों किलो जूल पे है, लेकिन हमारा जो वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड है, उसको अगर हम स्क्वायर करेंगे मास को 1 kg ले लेंगे तो ये जूल में आएगा एनर्जी का यूनिट। यू नो हाफ mv स्क्वायर, मास अगर 1 kg होगा तो वेलोसिटी अगर मीटर पर सेकेंड होगा तो इसमें अगर हम कैलकुलेट करेंगे इसका यूनिट जूल आता है, किलो जूल नहीं आता है। अगर मास 1 kg लेंगे तो उसको यूनिट सेम करना पड़ेगा। सो H1 माइनस H2 को हम क्या करेंगे, हम जूल को ले आएंगे, जूल में ले आएंगे क्योंकि वो किलो जूल पे दिया हुआ है। सो H1 इज 3000 माइनस 2762, ये किलो जूल पे है। सो हम क्या करेंगे, इसमें 1000 मल्टीप्लाई करने से ये जूल पर केजी में आ गया। सो इज इक्वल टू V2 स्क्वायर
माइनस v1 स्क्वायर, v1 तो 60 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, सो 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ से हम निकालेंगे तो ये आ गया हमारा 238,000 मल्टीप्लाइड, ये 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ गया v2 स्क्वायर माइनस 3600 और v2 स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया दैट इज सो v2 इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये आ गया 692.5 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी एट द एग्जिट एंड इतना आ गया 692.5 मीटर पर सेकेंड आ गया वेलोसिटी एट द एग्जिट एंड। सो ये पूछा था फाइंड द वेलोसिटी एट एग्जिट फ्रॉम द नजल। वो इनलेट के कंडीशन में 60 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी था, एग्जिट के कंडीशन में आ गया 692.5 मीटर पर सेकेंड, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बढ़ोतरी हो गया। सो अगर बीट बी को जाएंगे, इफ द इनलेट एरिया इज 0.1 मीटर स्क्वायर एंड द स्पेसिफिक वॉल्यूम एट इनलेट इज 0.187 मीटर क्यूब पर केजी, फाइंड द मास फ्लो रेट। हमको मास फ्लो रेट निकालना है। सो दिया हुआ है इनलेट एरिया, सो inlet area A1 is given to be 0.1 meter square and velocity at section 1 is given to be 60 meter per second and small v1 is specific volume of the fluid at the inlet, that is 0.187 meter cube per kg. You know mass flow rate का जो फॉर्मूला होता है mi डॉट में मीन्स मास फ्लो रेट एट इनलेट, पर सेकेंड में कितना मास एंट्री कर रहा है ये डिवाइस को, उसका जो फॉर्मूला होता है ऐसे हम लिखते हैं ρ1 A1 V1, where ρ1 इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एट द इनलेट और ρi ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं, एंड A1 इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द इनलेट एंड V1 इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट द इनलेट। अगर हम इसको इस तरह भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, A1 V1 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड एट द इनलेट V1 लिख सकते हैं, क्योंकि रो और स्पेसिफिक वॉल्यूम का जो रिलेशन होता है वो होता है रेसिप्रोकल। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो स्मॉल v होता है ये रेसिप्रोकल होता है रो का डेंसिटी का। सो A1 कैपिटल V1 डिवाइडेड बाय स्मॉल v1 ये होता है मास फ्लो रेट। ये इनलेट पे भी ये होगा और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ये जितना मास एंटर करता है इतना मास भी लीव करता है पर यूनिट टाइम में। और इफ ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो V1 और V2 चेंज नहीं होगा। अगर ये कंप्रेसिबल फ्लूइड जैसा कि गैस हो और गैसियस फ्लूइड हो तो ये इसका डेंसिटी टेम्परेचर और प्रेशर के साथ वेरी करता है। सो अभी हमको पूछा है बिट बी में व्हाट इज द मास फ्लो रेट। सो वी विल टेक A1 V1 डिवाइडेड बाय स्मॉल v1, क्योंकि हर चीज़ मेंशन है हमको। सो मास फ्लो रेट एट द इनलेट एंड दिस विल ऑल्सो भी इक्वल टू मास फ्लो रेट एट द एग्जिट। इतना मास अगर पर सेकेंड आ रहा है तो इतना ही जा रहा है, लेकिन पूछा है हमको मास फ्लो रेट एट इनलेट, तो ये हम लिख देंगे A1 V1 divided by small v1. This v1 is velocity and this is specific volume. So 0.1 meter square, velocity is 60 meter per second divided by 0.187 meter cube per kg.
ये करने से आ रहा है 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 0.187 मीटर क्यूब पर केजी, वो आ जाएगा 32.08 kg पर सेकेंड। ये मास फ्लो रेट एट इनलेट एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू मास फ्लो रेट एट एग्जिट ऑल्सो। सो बीट सी में जो पूछा है, इफ द स्पेसिफिक वॉल्यूम एट द नोजल एग्जिट इज 0.498 मीटर क्यूब पर केजी, फाइंड द एग्जिट एरिया ऑफ द नोजल। ये बीट सी में जो पूछा है, स्मॉल v2 नोजल का एग्जिट एंड में दिया हुआ है और वेलोसिटी एट द एग्जिट एंड जस्ट वही बीट ए में कैलकुलेट किया, तो वेलोसिटी भी हमको मालूम है, तो एरिया हम निकाल सकते हैं। क्योंकि मास फ्लो रेट अभी निकाले, उसको पुट करके हम A2 निकाल सकते हैं। क्योंकि वट एवर मास फ्लो रेट एट द इनलेट इज अकॉर्डिंग टू मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल, according to mass conservation principle, मास फ्लो रेट एट इनलेट पर सेकेंड में, पर टाइम में जितना मास इनलेट में जा रहा है डिवाइस के अंदर, उतना ही मास उससे बाहर जा रहा है। ये होता है mass conservation principle, and so m, which is in this case is 32.08 kg per second, जो हम निकाले जस्ट। so me dot, we know that me dot is nothing but A2 में मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया एट द आउटलेट, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया आउटलेट जो हमको पूछा है, एंड V2 इज वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट द आउटलेट। जैसे V1 होता है इनलेट एंड पे वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, ये आउटलेट एंड मतलब 2 सेक्शन में वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड होता है, एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड एट द आउटलेट और एग्जिट एंड। ये दोनों चीज़ें हम, ये दिया हुआ है और ये हम निकाले, जो 692.5 मीटर पर सेकेंड। एग्जिट एंड पे कितना वेलोसिटी वो तो निकाले ना, तो A2 वो आ गया 692.5 मीटर पर सेकेंड ले लिया, और स्पेसिफिक वॉल्यूम एट द आउटलेट एंड, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्पेसिफिक वॉल्यूम एट द आउटलेट एंड विच इज गिवन टू बी 0.498 मीटर क्यूब पर केजी। इनलेट पे था 0.187 मीटर क्यूब पर केजी, वो स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया हमारा 0.498 मीटर क्यूब पर केजी। सो इस कैलकुलेशन से A2 आ जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया एट द एग्जिट एंड और आउटलेट एंड, वो आ जाएगा 32.08 मल्टीप्लाइड बाई 0.498 डिवाइडेड बाई 692.5, वो मीटर स्क्वायर पे आएगा 0.023 मीटर स्क्वायर। जो 0.1 मीटर स्क्वायर इनलेट पे था क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो आउटलेट पे, इनलेट पे 0.1 मीटर स्क्वायर था, आउटलेट पे आ गया 0.023 मीटर स्क्वायर। ऑब्वियसली क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डिक्रीजिंग इन द direction of fluid flow, since this is a case of nozzle and the fluid flow is subsonic flow. So that's why this is the rule.